Hello, good evening, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. And we just had another game that has come to an end and one more team has qualified for the playoffs. We're going to talk about that, but before that, let me bring into the conversation my four panelists. I've got four fantastic gentlemen here in the Pavilion with me. They have a great grasp of the game of cricket. They've served the game of cricket really well in Pakistan, proudly. All four of them former captains of Pakistan. First up, an opening batsman and a part-time leg spinner, Azhar Ali. Good evening and welcome, Azhar. With him, an off-spinner and a bombastic batsman, I've got Mohammad Hafiz. Good evening and welcome. Thank you. Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history. I've got Misbah ul Haq. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Misbah. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. And finally, ladies and gentlemen, I have the man, the myth, the paradox, the enigma, the saga. I have the kalakar, fankar, adakar, rapper, banker. He's just an all-round institution of absolute excellence in almost everything that he does. Ladies and gentlemen, the Sultan of Swing, the swinging Sultan. And the only thing that perhaps, if at all, is to be considered as a weak spot for him is that he's also the president of the Karachi Kings. Ladies and gentlemen, I've got the legendary Wasim Akram with me. Good evening, hello and welcome, Wasim. Wow, that was a long introduction. It was. Good evening. Good evening. पायदान fresh लग रहे हैं. आज भी मैं भी नहा धो के फ्लैश हो गया हूँ. I know. All right, folks. इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे लेकर चले, आइए जरा नजर डालते हैं आज की मैच समरी के ऊपर. This is how it went down. The team that has qualified, the second team to qualify, are Peshawar Zalmi. Big congratulations to the Yellow Storm. दोस्तों आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दी और पेशावर ज़ल्मी ने 196 for 8 जो है वो स्कोर किया. Now Babar Azam once again in absolute flow of runs with 53 of 30 deliveries, looking really good. Cadmore there 33 of 19. Saim also blasting right on top, taking Suhail Khan to the cleaners with 30 of 12 deliveries. Powell down there with 28 for 25. And this could have been a bigger total had that magic man Akeal Hussain there not done that hat-trick, which led to him having 4 for 23 in his 4 overs. Abrar there 1 for 34 in his 4. Suhail Khan 1 for 48 in his 4, expensive. And then Hasnan 1 for 52 in his 4 overs, very expensive. In reply, Quetta Gladiators are bundled out for 17.5 overs for 120 runs. Saud Shakil there again taking a start and then throwing it away, 24 of 12. Jason Roy just didn't look like he was in this game. Akeal Hussain tried, but it was too late in the game. Mohammad Amir just coming in for the sake of coming in. And it was the Peshawar Zalmi bowlers. Look at Khurram, 2 for 15 is 2.5 overs. Saim Ayub once again 2 for 20 in his 3. Wood 2 for 21 in his 3 overs. And Mehran there 2 for 22 in his 4. All round a great batting and bowling display by the Peshawar Zalmi. And they win by 76 runs. A big congratulations to the Yellow Storm. और आइए जरा नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर कि पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है इस वक्त. तो जनाब ये रही पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल. 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं. मुल्तान सुल्तान्स 12 points के साथ already qualified, and joining them in the playoffs are Peshawar Zalmi now with 11 points in their 9 games, but they've qualified, so congratulations Yellow Storm. Islamabad United get pushed down to number 3, but they are very much in contention to qualify because they've got one more game to go, and let's see how that goes for them. Quetta Gladiators all of a sudden find themselves in a bit of a trouble because they've got 2 games to go, and if they lose their 2 games and remain on 9 points, and Karachi Kings somehow pulls off a miracle of winning 2 of their remaining games and go to 10 points, then Karachi Kings qualify to be in the 4 teams that play the playoffs. Lahore Qalandars, the defending champions, the 2-time consecutive champions, were already out of this contest, but they are playing 2 more games and they can spoil the party for any of the teams. And that's how your points table is this evening. Wasim, let's get down to the business. Quetta Gladiators, your friend Moin Khan must be a very, very disturbed fellow right now. Yeah, and he should be. Yeah.
Obviously, at one stage, I thought, okay, इनका start ज़बरदस्त हुआ. Sam Ayub and Babar started. Babar का ये 34वां 50 है PSL में. Incredible performer, incredible consistency. That shows how greater player he is, and he's only going to get better. That's a good news for Pakistan in general, but not for other teams in PSL. So they lost their first wicket early on. I think 46 पे इनकी पहली wicket गिरी है. पर उसके बाद I thought कि इनको शायद पेशावर को पकड़ लिया है कोयटा ने, मगर एक स्टेज पे ये 7 आउट थे 157 जी बिल्कुल ऐसे ही 7 आउट 157 एंड इन द एंड दे फिनिश्ड विद 196. और क्रेडिट देंगे ऑब्वियसली जो उन्होंने रखे हुए हैं, स्पेशली जो फिनिशर है इतना इंपॉर्टेंट पावल, उसने किया 28-25 गेंदों पे, वो सिचुएशन के मुताबिक बहुत अच्छा खेला है. और 196 डजंट मैटर द पिच, डजंट मैटर द कंडीशंस, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू चेस. कोयटा रियली हैव टू थिंक. वी वर टॉकिंग अबाउट द बैटिंग. सोहेल खान को खिलाया है, वो गया कितने 13 ओवर गया है. सोहेल खान 48 4 ओवरों में. मेन बॉलर मोहम्मद हसनैन 52 इन 4. फुल टॉस से भी करो 52 नहीं होते यार. फुल टॉस से भी करो, बैट्समैन को बता के मैं फुल टॉस कर रहा हूँ भाई, तूने चौका मारना है, फिर भी नहीं होते. His bowling has gone down the drain unfortunately. He's got to think twice. He's got pace, that's it. He hasn't impressed anyone so far in this PSL. Yeah. He has been injured before the PSL. Suddenly became fit. He doesn't concentrate on red ball cricket. If you don't, and that's where exactly results आएंगे बेटा आपके. और ये results इसलिए आ रहे हैं हसनैन के. Yeah, that's just been very It was a bad. complete win by Peshawar. Congratulations, the first team ever 9 PSL है कि उन्होंने qualify किया playoffs. Incredible. Is that is not? a great. That 9 PSL में they've qualified to go into the playoffs. That's just fantastically incredible for them. But this is where their test starts now, Wasim, चूँकि ये पहले भी बहुत दफ़ा जा चुके हैं. This is where the test starts for them now. Yeah. I mean, one hurdle is crossed. Yeah, that's true. अब आप दोबारा अब तो बाकी 3 टीमों में से 2 ने आना है. इस्लामाबाद, Quetta got 2 games. Islamabad got 1 game. And Karachi Kings got 2 games. Karachi can win there too. That's the only thing they can do. They can't change other teams का. नहीं, ये तो अभी हमने पॉइंट टेबल पे देख लिया ना वसीम, कि अगर क्वेटा अपने अगले 2 हार जाती है और कराची अपने 2 जीत जाती है, then Karachi are through. You know that's. So guys, question is, Misbah, to you as well, कि अब जैसे क्वेटा जिस स्टेज पे है, 2 मैच हारी है कंसेक्यूटिव. एक तो था ना क्लोज मैच, हार जाओ तो इट्स ओके. 118 पे आउट हो गए कराची के खिलाफ, आज 120 पे आउट हो गए. सो ऐसी सिचुएशन में टीम कम बैक कैसे, क्या करना चाहिए क्वेटा की टीम को आपके ख्याल में? देखिए वसीम भाई, अगर मैं क्वेटा का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूं टीम का, आज अगर आपको उनकी बैटिंग देखें, जेसन रॉय, सऊद शकील, रेली रोसो, ख्वाजा नाफे, उमैर बिन यूसुफ, नंबर 5 तक सारे ओपनर हैं. उमैर बिन यूसुफ भी टॉप ऑर्डर में खेलता है नंबर 3 पे. एक सिर्फ आपका प्लेयर खेल रहा है लॉरी एवंस, और वो भी आपका मेन प्लेयर गया है, जो एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था और जो फिनिशर था, जो परफॉर्म कर रहा था उसकी जगह. बाकी स्क्वाड देखें, 20 में आपके पास 8 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं. 5 आज टीम में खेल रहे हैं, पीछे 3 बाहर बैठे हैं अभी, वो भी टॉप ऑर्डर है. आपके पास टोटल पूरे स्क्वाड में जेन्युइन मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो सिर्फ शरफन रदरफोर्ड है और दूसरे सरफराज अहमद हैं, जो 4 के बाद खेलते हैं या 4, 5, 6 पे खेलते हैं. अब आप कैसे टीम बनाएंगे? और रदरफोर्ड जो हमें पता लगा है, ही इज गॉन बैक टू सी हिज फैमिली. अरे so that doesn't make any sense. Doesn't make any sense. My request to PSL commissioner or PSL or PCB is, when you sign a player, when player says कि I'm available for PSL, make sure his availability, make sure कि वो पूरे टूर के लिए आए, फैमिली को मिस करना है तो ना आए PSL में. अब दरमियान में एलेक्स हेल भी चले गए 3-4 दिन के लिए. तो फिर बाकी लीग ना खेलो, इस लीग से छुट्टी क्यों चाहिए? दुबई में छुट्टी नहीं ली किसी ने, दुबई में सारे थे. एक मजाक बन गया है कि जी आप जब मर्जी चाहें आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इन द मिड ऑफ द टूर्नामेंट. हां जी, वही मैं कोई फैमिली इमरजेंसी ना हो, बट देन अदर देन दैट इज समथिंग इमरजेंसी है तो. बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम जिसके पास एक ही प्लेयर था मिडिल ऑर्डर का या फिनिशर, वो भी चला गया है तो दे आर इन ट्रबल. 20 में से 8 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं टोटल आपके 10 बैट्समैनों में से, तो वेयर यू गो. और बैलेंस एक ऑलराउंडर नहीं है उनके पास. तो ओवरऑल बाकी चीज़ें तो बॉलिंग की बात करेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात करेंगे. हफीज, व्हाई डू यू थिंक रायली रूसो इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट टुडे? जी, क्वेश्चन तो बहुत से पूछे जाएंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि
जस्ट फॉर अ लाइटर नोट, मुझे लगता है क्योंकि मैंने पिक किया कोयटा को, तो इसलिए ये पहले से ही कवर कर रहा है, चूंकि बाद पहले से में बाद में इसको बात हो रही है, रगड़ना, हम सीरियस बातों के बीच में ही कवर कर रहे हैं। नहीं, ऐसी ये इस टॉपिक को दोबारा छेड़ेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन मैं पहले वहीं पे आ गया ना। एनीवे, कमिंग बैक टू द सीरियस नोट, जब आपको स्टैट्स ने आपने देखे कि पिछले 4 मैचेस जो हैं उनमें से 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीता है, तो ये वो पिच नहीं है जो हमने पहले एक्सपीरियंस की है, जो पिछले साल थी। वो स्टैट्स जो पिछले साल के लिए थे वो इस साल टोटली डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक एक तो उनकी कॉम्बिनेशन में अगर मैं जाऊं तो हमें बहुत से इश्यूज पहले भी नज़र आ रहे थे, उन्होंने कोशिश की उसको रिकवर करने की। सरफराज जो आउट ऑफ फॉर्म थे बैटिंग में, उनको निकाल के उन्होंने उनको रिप्लेस किया विद लॉरी इवेंस, वो भी आज नहीं काम कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है, देखें, सऊद शकील गिविंग हिज विकेट अवे, Jason Roy not taking responsibility. Yes, he's a wonderful player. He has to play aggressive role. Lekin there's always something required at that level, that is taking more responsibility, which is not taking at the moment. He's throwing his wicket away. दूसरी तरफ मैं जाऊँ 4 और 5 के ऊपर दोनों यंगस्टर इकट्ठे हो गए हैं। इस साइड पे नाफे है और दूसरी साइड पे जो उमैर बिन यूसुफ वो आ गए हैं। अब उस स्टेज के ऊपर आपको या तो इनको पहले ब्रेक करना है कि इनमें से एक बंदा जूनियर और एक बंदा सीनियर साथ हो, ताकि मोमेंटम कंटिन्यू किया जा सके। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत से इश्यूज इनकी बैटिंग में हमें पहले भी नज़र आए थे। और जब पार्टनरशिप हो जाए 100 रन की, नॉर्मली ये पार्टनरशिप हमेशा जीत के काम आती है जी। लेकिन इनकी पार्टनरशिप बॉलिंग में हुई है, क्योंकि हसनैन ने खाया 52 और सोहेल ने खाया 48, तो 100 की सेंचुरी के ऊपर जो है तालियां दूसरे ड्रेसिंग रूम में बज गई। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ डेफिनेटली एन इशू। Where, Azhar, for you, has the Quetta Gladiators batting gone wrong? Because शुरू जब हुई थी तो ये तो ऐसे लग रहे थे खतरनाक, जब ये PSL शुरू हुई थी कि बड़ा खतरनाक बैटिंग लाइनअप है, नीचे की तो बारी नहीं आएगी, ऊपर से ही तबाही मच जाएगी। और उसके बाद तो बैटिंग लाइनअप ही की तबाही मच गई है। देखिए, वही बात पहले जो हम कल या आज सुबह के टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अच्छे टाइम पे गिव अवे करते हैं अपनी विकेट, तो फिर ऐसा टाइम आप दावत दे रहे हैं ऐसे टाइम को आने में। तो अब आप जब साउथ का अच्छा टाइम चल रहा है, अभी भी आई थिंक ही इज़ प्लेइंग रियली वेल, बट 20s-30s में जब जाके आप आउट होंगे, और इवन रॉय भी कई स्टार्ट्स उसको मिले हैं, लेकिन अभी तक रॉय से हमें बहुत बड़ी इनिंग सिवाय एक मैच में जिन्होंने 150 प्लस की पार्टनरशिप इन्होंने की, आपको बस स्टार्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन जब आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस देनी है तो एटलीस्ट एक प्लेयर इवन अ रन चेज, ठीक है, यू नीड अ 10 ओवर। बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट था, साउथ ने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स मारे, रॉय भी ही वाज लुकिंग ओके, बट आपके एक प्लेयर ने बड़े रन्स करने हैं, उनकी भी देखें 50 बाबर ने की है, फिर 30-40 आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो भी क्यों बीच में लॉस्ट हो गए कि उनके जो सेट प्लेयर आउट हुए हैं, साथ ही फिर उनको जब कोलैप्स हुआ है वो तो पावर लैंड पे कर गए, वरना हो सकता है वो 180 से नीचे ही रह जाते। तो आई थिंक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। इवन आप 200 भी चेस कर रहे हैं तब भी आपके एक बंदे को 70 इवन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130-135 टू गिव चांस टू अदर टू प्ले अराउंड हिम। इस बैटिंग ऑर्डर से तो मुझे नहीं लग रहा कि कोयटा कुछ इंप्रेस कर पाएगी। होप आई एम रॉन्ग, बट अब जैसे बाय लुकिंग एट दे प्लेइंग 11, अगर नंबर 7 पे अकील आ रहा है तो इसका मतलब है कि 6 बैटर हैं आपके पास, उसमें 2 विकेटें ऊपर से गई, 3 तो आपका काम और तमाम। जो सबसे बड़ा मसला है जो आपने बात की कि रायली रूसो वो नहीं है जो हमने उनको देखा है। कप्तान बनने से वो इतने अंडर प्रेशर हुए हैं, वो क्यों खामखा अपने ऊपर उन्होंने खोल चढ़ा लिया कि मैंने बारी लेके खेलना है। नॉर्मली ही कम्स एंड ही ट्राइज ऑल द एग्रेसिव शॉट्स, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अभी जितनी भी इनिंग्सें आई हैं उनका स्ट्राइक रेट 100 का है इस पूरे सीजन के अंदर। उनके लिए बहुत बड़ा दूसरी एक सिंपल सी चीज़ है कि जब आपकी ऐसी बैटिंग लाइनअप होती है कि आपकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ नहीं है, यू ऑलवेज जस्ट बैट फर्स्ट। आप कभी अपनी बैटिंग पे प्रेशर नहीं डालते क्योंकि आपके पास बॉलिंग ज़्यादा है, आपने बॉलर ज़्यादा खिलाए हैं और 7वें नंबर से आपके पूरे 5 बॉलर हैं, तो फिर आप अपनी वीकेस्ट जो लिंक है उस पर आप प्रेशर डाल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो थॉट प्रोसेस जो है वो सही चल रहा है इनका। दे हैव टू जस्ट करेक्ट इट, अदरवाइज आई मीन आने वाले मैचेस में पिच बन गया, उसके अंदर मॉर्निंग गेम थी, वो मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून गेम थी जिसमें आपको ज़्यादा परचेज मिला है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाया जाता है पहले बैटिंग करने को। पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड इज़ वेरी गुड। All right, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, there's more to talk about this game. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar Alam. You're watching EA Sports. With me in the Pavilion, I've got Mohammad Hafiz, I've got Azhar Ali, I've got Misbah Haq, and the great Wasim Akram. बात कर रहे हैं हम लोग जनाब Quetta Gladiators versus Peshawar Zalmi की. Peshawar Zalmi have qualified today in the HPL PSL 9, the second team to qualify and join Multan Sultans in the playoffs. And we were talking about Quetta Gladiators, but now let's take this thing in order, Wasim. What an innings by Babar Azam yet again. Unfortunate soft dismissal in the end, but again he's looking like a run machine. This has been a great PSL for him. Yeah, highest run getter, 34 plus scores of 50, and then of course he has 97 scores of 50 or more in T20 cricket. That speaks volume of his consistency at this level. Doesn't matter the format, T20 ले लो, one day cricket ले लो, test cricket ले लो, he gets run. Technique zabardast hai, hungry for runs and plays some beautiful shots. Easy on eyes, elegant shots, cricketing shots. कोई दड़ा नहीं मारता, कुछ नहीं मारता. बुरे बॉल का वेट करता है. He's just a phenomenal player. Yeah, just fantastic. Look, even Treat to today, watch. Treat to watch. And he's getting, you know, मैं actually बताऊँ, I think बाबर आजम के critics भी रहे, बहुत सारे लोग सारी बातें करते रहे, सब कुछ करते रहे. But I think what we are seeing is Babar Azam evolve in real time because this PSL he's just become a totally different beast. Misbah. जी बिल्कुल. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्कोरिंग रेट जो है उनका डजेंट मैटर. आपके साथ सैम खेल रहे हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट स्टिल I mean, even today, 30 balls, 53 runs, 1 6 and 9 fours, 176.66 Great strike rate. So that speaks a lot. और आज एक और शॉट आपने देखा कि नॉर्मली जब बाबर नहीं खेलते उसकी वजह से 2 चौके मिले उनको. लेफ्ट आर्म स्पिनर पे 45 नहीं रखा हुआ था, मिड विकेट रखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे बाबर बहुत अच्छा खेलते हैं, 2 ले जाते हैं, चौका मारते हैं. उन्होंने फील्ड चेंज कराई. पहले उन्होंने पैडल स्वीप मारी, चौका हुआ. फिर अगले बॉल पे वो फील्डर मिड विकेट से गए, शॉर्ट फाइन लेग पे गया, वो गैप बना. अगले बॉल पे बैकफुट पे जाके वहाँ पे चौका मारा है मिड विकेट पे. सो दैट्स व्हाट पहले मिसिंग था बाबर की बैटिंग में कि आप सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्राउंड की और आप फील्ड को चेंज करवा रहे हैं अपने गैप्स वहाँ पे बनाने के लिए. गुड टू सी. That's great. Saim Ayub Hafiz today was absolutely explosive because 30 रन उन्होंने किए 12 गेंदों पे 250 के स्ट्राइक रेट के साथ. He was just destructive right on top. जी आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में जो इम्पैक्ट साइम और बाबर डाल रहे हैं वो किसी और पार्टनरशिप में नहीं नज़र आ रहा. बाबर ऑब्वियसली एक टेक्निकल प्लेयर है, लंबा खेलते हैं, लेकिन जो साइम इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेट अवे जो अटैक करता है बॉलर के ऊपर वो बहुत अच्छा है. और अपनी शेप लूज़ नहीं करते, अपनी शॉट खेलते हुए जो इनकी शेप रहती है वो बड़ी शानदार है. और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन बैटिंग में तो है ही. आई स्टिल वांटेड हिम टू कंज्यूम मोर बॉल्स बिकॉज जितना ये खेलेंगे ये लंबी इनिंग्स ही खेलेंगे. इनको शॉट का मसला नहीं, इनको वहाँ पे स्टंप विकेट पे रहने का जो है. अगर ये 40 बॉल खेलेंगे ही इज़ गोना गेट दैट सेंचुरी वेरी सून. तो लेट्स सी. लेकिन अगर मैं ज़्यादा जो मुझे खुशी है वो ये है कि वो जो मैंने सुबह बात की थी कि हमें ऐसा एक प्लेयर चाहिए था पाकिस्तान के लाइनअप में वनडे और T20 में जो बॉलिंग कंट्रीब्यूशन कर सके. तो अब ये एक ऐसा प्लेयर है जो आया है जिसके आने से अगर ये T20 में 2 से 4 ओवर और वनडे क्रिकेट में 5 से 8 ओवर करने का बॉलर बनता है, इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, तो पाकिस्तान के ओवरऑल जो कम्बिनेशन बनेगा बॉलिंग का और बैटिंग का वो बड़ा मजबूत हो जाएगा. तो एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को आप जो है ना ये इमर्ज करता हुआ हम देख रहे हैं कि साइम अयूब बैट्समैन तो थे लेकिन इस पूरे PSL में वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर जो है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन हिज बॉलिंग. ही इज़ नॉट अ नॉन रेगुलर बॉलर. अभी तक जो इन्होंने बॉलिंग की है ये प्रॉपर बॉलर की तरह बॉलिंग की है. So I'm really impressed. Yeah, becoming like a full utility player there, Saim Ayub. And even today, he bowled 3 overs at a very good economy, 6.66. और 2 विकेटें इन्होंने आज जो है यहाँ पर निकाली हैं. So that's fantastic, Wasim. We have another good full utility player in the making. It's a blessing कि आपको ऐसा क्रिकेटर मिले जो आपको 2 से 3 से 4 एट टाइम T20 में ओवर देते. जैसे हफीज़ ने कहा कि वनडे में भी 6 से 8 ओवर कर दे. फिर आपका कम्बिनेशन आप एक्स्ट्रा बैटर, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हो
him being a proper batsman, so that's definitely icing on the cake. But yeah, he's only going to go places, this boy. Yeah, absolutely. Now let's talk about the Quetta Gladiators bowling. और जिस तरह हफीज़ ने कहा कि जो फास्ट बॉलर्स थे हसनैन एंड सुहेल खान, उन्होंने आप दोनों ने मिलकर 100 रन दे दिए पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन को। आराम से प्यार से, मतलब वो यूं था कि ये गिफ्ट, वो कहते हैं ना पंजाबी में खंग भी नहीं आई। विकेट गिरी होती है, हसनैन को बॉल देते हैं और आते ही वो जो ऐसा मजेदार बैट्समैन को स्टार्ट देते हैं। मतलब कि यार सिर्फ सिंपल सी बात है, आप नया बैट्समैन आया, पहले उसको सामने नी रोल लेंथ पे ऑफ स्टंप पे बॉल तो करो। सो मैनी 4 बॉल्स, ये चाहिए तो अच्छा शॉट आप कह सकते हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी ऑफ द बॉल देखें, आप विथ देते हैं, आप लेंथ देते हैं। अब ये शॉट तो बहुत ही जबरदस्त है जी, बैकफुट पॉइंट बाबर भी मारा है। सारी बात है, बीच में शॉट्स तो अच्छे लगे, लेकिन ये जो लेंथ आप आते हैं आके पीछे बस मार देते हैं, दैट इज सो ना रिदम में लग रहा है, ना पेस आ रही है, ना फॉलो थ्रू आ रहा है, क्रॉस द सीम का। अब मेन बॉलर है आपका, बिल्कुल ऐसे ही। अब मेन बॉलर है आपका, ये एकदम कमेंट्री आ गई है, इसमें कोई बात नहीं। अब मेन बॉलर है, मैं अब वो पहला, अब मुझे जब बॉल दिया गया एज अ फास्ट बॉलर, तो मेरा काम है, अगर बॉल गीला नहीं है और अगर मैं यू नो बॉलिंग पहले कर रहा हूँ या दूसरी कर रहा हूँ, मैं बॉल पकड़ूंगा सीम से, कोशिश करूंगा सीम लगे या स्विंग हो या सीम हो, ताकि मुझे विकेट मिले। जब पहला बॉल ही आप क्रॉस सीम करोगे तो इसका मतलब है एज अ बॉलर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, आपको ये नहीं पता मेरा बॉल गिरना कहाँ पे है, हेंस यू होल्ड द बॉल लाइक दिस एंड दैट्स व्हाट ही डज। ही डिड अदर द सेम थिंग। इसको लेके आया विकेट लेने के लिए, इसने पहला बॉल ऐसे किए और चौका। आज भी आया पहले दूसरे बॉल पे चौका, सारा प्रेशर अपने आप पे, अपनी टीम पे, और बैट्समैन सेट है। दूसरा वसीम भाई, टैक्टिक्स समझ से बाहर हैं कि आपके पास 2 बॉलर ऐसे हैं, सुहेल खान और हसनैन, कि जिनका आउट स्विंग होता है राइट हैंडर को। इट मींस कि आगे से लेफ्ट हैंडर को अंदर आता है। अब आज आमिर ने पहला ओवर किया है, जो कि स्ट्रेंथ है उसकी, उसको इतना मसला नहीं होता सैम अयूब को। अगर आप टैक्टिकली प्लान करें तो पहला ओवर या तो हसनैन को करना चाहिए था या सुहेल खान को। सुहेल खान दूसरे ओवर में आए भी हैं तो राउंड द विकेट आए, ओवर द विकेट थोड़ा फुलर आउट करने जाए, जैसे नसीम शाह ने किया। अटैकिंग आपने देखा भी ऐसी टूर्नामेंट में। देन अगेन आपके साथ एनालिस्ट भी हैं, सारा कुछ है, आई डोंट नो वहाँ से। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ समझने की है कि जब लेफ्ट हैंडर जो थोड़ा शोल्डर बंद करके खड़ा होता है और जिसकी मूवमेंट थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ होती है, तो जब यहाँ से बॉल आता है, लेफ्ट हैंडर उसको बॉल करता है या राइट हैंडर यहाँ से आता है, तो उसका सेटअप पूरा वहाँ वो चला गया हुआ, वो यहाँ से आते हुए गेम को अच्छा खेलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो उस जगह पे है, हेड वहाँ चला गया है। जब वही बॉल यहाँ से आएगा वो फिर भी उधर ही जाता है, तो उसको वापस आना मुश्किल है, उसको क्रॉस खेलना पड़ेगा उसको। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, करना चाहिए था और अर्ली ऑन जो है वो विकेट आपको मिल सकती थी वहाँ पे। बट वंस ये देखें, ये वहाँ से आ रहा है तो वो मैनेज कर रहा है, आराम से उसको खेल रहा है। यही बॉल ओवर द विकेट राइट हैंडर अगर फुलर करता, और बाबर को भी देखेंगे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है सारी, हालांकि आपको पता है कि बाबर जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ को स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेल। ज़बरदस्त, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की मिसबा, वेरी गुड। दैट्स योर राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई होप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स में सुन रहे होंगे और उनके कोच भी सुन रहे होंगे, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम दैट दे गोइंग टू हैव टू डील विद। अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इसका मतलब है दे नीड अ लाइफ। They just lost a game. I doubt they'll be watching this show. Actually, if they've lost a game, they need to watch this program. In fact, every team needs to watch this program to understand what Hafiz's role is in this PSL. मैचों के बाद टीमें निकलती भी, मैं तो सुन तो ले, ये मैच जब खत्म हो गया ना, मैच प्राइज सेरेमनी भी होगी, सब हो गया, टीमें निकलती भी नहीं है, सब ने अभी खाना खाना होता है, ऐसे कमरे जाके मंगा लेते हैं। ड्रेसिंग रूम में भी टीवी लगे है मेरी, लेकिन फिर वही बात है, every team in this HBL PSL, especially the ones that are now struggling to qualify, must watch the show and understand the role of Mohammad Hafiz. Hafiz का रोल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आज हफीज का रोल समझ रहा हूँ। आज आतिफ राना जिम में मिले हैं, वो भी हफीज का पूछ रहे थे, फिर जुमा पढ़ने आए हैं लाहौर कलंदर्स के काफ़ी प्लेयर, वो भी हफीज का पूछ रहे थे और कह रहे थे उन्होंने कहना कल लाहौर नहीं लड़नी। नहीं, वो ऐसे ही है ना, जैसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड टूर की सबसे बड़ी वजह मैं थी। पीएसएल में जितनी टीमें हारी उसकी वजह मैं हूँ। वैसे उसका मैं गवाह हूँ।
All right, boys. Akeem Hassan did a fantastic hat trick today, and it was just wonderful to see him bowl. And he brought Quetta Gladiators back into the game because at one point हम लोग सब guess कर रहे थे कि ये 220, 230 का target भी लग सकता है. But he really pulled him in with that wonderful over. He's really special. Very special. So far in this PSL, he's a special bowler. Every time he get the ball, he brings something for the team. He takes wicket. He controlled the game. So very well done by him. As a bowler, he's using every condition providing to him. Yeah. इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा. ये आता है आके अपनी जो इसकी स्किल्स हैं उसको एग्जीक्यूट करता है और आज जिस मौके पे इसने पुल बैक किया आप देखेंगे उस शुरू में अटैक हुआ इस पे they were going like they were flying that time and we were thinking कि 250 आराम से हो सकता है लेकिन वहाँ पे जो हैट्रिक की है वहाँ से इन्होंने जो बहुत ही शानदार बाबर की विकेट ली है जी और इन्होंने पूरा मैच बना के दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इनके ओवर खत्म हुए हैं वो प्रेशर दूसरी साइड से मेंटेन नहीं हुआ. ये बाबर को उन्होंने पहले ट्रैप किया बेहतरीन तरीके से. तो मैं साथ तौर पर समझता हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है किसी ओवरसीज़ प्लेयर ने तो वो ये है. एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू. ये पहले इन्होंने आमिर जमाल को लिया फिर ये दूसरा जो था मेहरान ने कट खेला अपने और एंड देन दिस वाज अ वेरी स्पेशल कैच. It was a big deal. That is a big deal. Hat-trick is always a big deal. T20 में I think छठी दफा किया है किसी बॉलर ने PSL में हैट्रिक एंड ही इज द सिक्स्थ. सेकंड ओवरसीज है पहले इमरान ताहिर की थी और ये सेकंड ओवरसीज बॉलर है जिन्होंने हैट्रिक की है. या जस्ट एब्सोल्युटली सुपर स्टफ देयर. अभी आज T20 में भी हैट्रिक की है इन्होंने बट वो आई थिंक अंपायर ने आउट दिया जब उन्होंने रेफरल लिया है. आई थिंक द हैट्रिक बॉल पे नॉट आउट हुआ सो वो भी इसकी हैट्रिक हो जाती. बिल्कुल. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग which was a terrible disaster. कर लिए उनकी बात कर लिए बट लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग. पूछ लूं वो जो थोड़ी बातें कर रहे थे नथिंग अगेंस्ट नाफे लेकिन वो जो कह रहे थे इसको फौरी टिकट दे देना चाहिए उसको टिकट देनी है या वापस ले लें. इमेच्योर कुछ लोग थे वो नाफे की एक परफॉर्मेंस के ऊपर इतने खुश हो गए थे इतने एक्साइटेड हो गए थे कि सीधा उसको जैसे बोर्डिंग कार्ड उसके हाथ में दे दिया था. I can understand people do get excited when they see a special talent but I think my request to everyone is जब भी कोई स्पेशल बैट्समैन स्पेशली आता है हमारे कल्चर में यू मेक श्योर ये कंसिस्टेंसी देखें उसकी. वन ऑफ इनिंग से आप पिक या ड्रॉप नहीं कर सकते पाकिस्तान टीम के लिए. खुर्रम शहजाद इम्प्रेस टुडे. आई मीन बॉलिंग ही इज रियली गुड. आज उन्होंने जी बिल्कुल आपने कहा था हफीज आपने बिल्कुल कहा था एक तरफ आपने खुर्रम शहजाद का कहा था और दूसरी तरफ आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पिक कर लिया तो कम तो हुई गया ना फिर तो वही जाना सी. यार मुझे हफीज में एक चीज बता यार मैंने कसम से मेरे ज़हन में ज़ल्मी था एंड तक जैसे मैंने अजहर की तरफ देखा इसने क्वेटा मांगी मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना बड़ा सोच समझ के इसकी पिक. अल्लाह मेरा भी पूछ ले मेरा क्या था. इनका क्वेटा था जैसे इसने कहा मैंने वसीम भाई का हाथ ही पकड़ लिया ज़ल्मी हो गया क्योंकि मैंने इस्तिखारा कर लिया था. इन्होंने कहा है मैं ज़ल्मी कहूंगा फिर खुर्रम शहजाद का भी कहा. खुर्रम शहजाद साइड में भी आ गए हैं और उनको पता है कितने अच्छे बॉलर हैं वो. मैंने सिर्फ और सारा कुछ होते मेरा मैं बीच में कहां से मैंने मानी है क्वेटा ग्लैडिएटर. जैसे मैंने देखा कि मेरे भाई ने जो बड़ा सोच समझ के पिक लेता है प्रेडिक्शन की मैंने कहा इसकी बात के ऊपर ना लब बैक कर दो. अब यकीन आ गया आपको. सारी बात हो गई बट खुर्रम शहजाद ने बेहतरीन बॉलिंग की है. आप देखें आज उन्होंने जबरदस्त यू नो मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है हकीकत में. पिछले 7-8 साल से डोमेस्टिक में इसने दिन रात मेहनत की है. बहुत से इश्यूज आए लेकिन ये खड़ा रहा मेहनत करता रहा. इसको राइटली एड्रेस इसको पिक किया इसको चांस मिला वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही मैच खेला और बहुत ही शानदार बॉलिंग की बड़ा इम्पैक्टफुल बॉलिंग की. वहाँ से अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए वापस आए अपनी उस इंजरी को रिकवर की. और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगी कि जब ये हल्की सी इनको इशू आया इन्होंने खुद ऑनेस्टी से बताया कि मुझे ये इशू चल रहा है. नहीं तो सम टाइम प्लेयर मैच खेलने के लिए अपने आप को लॉन्गर पीरियड के लिए इंजर्ड करते हैं. जी. तो ही केम ही पुल्ड हिमसेल्फ आउट और इनकी राइट ट्रीटमेंट की गई. अब वापस आए हैं. आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम कि ही इज डूइंग अ गुड जॉब. अब जो इसकी इंजरी क्या हुई थी ऑस्ट्रेलिया में मुझे जरा थोड़ा सा इसको लाइटली जो रिब इशू था इसकी वो ये जो लेफ्ट साइड है ये इसको थोड़ा इशू आया था और इसने कंप्लेंट की वजह से तो नहीं आया था. नहीं लेकिन इसी एक्शन से ही इज बीन बॉलिंग बाहर निकलता है. ही इज बीन बॉलिंग इन क्रिकेट. ही प्लेड ऑल द सीजन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन. इसको हमने पिक किया तो मुझे नहीं लगता कि ये इशू सिर्फ इसके बॉलिंग एक्शन से. यस बॉलिंग एक्शन में काम होने वाला जो मुझे बॉलिंग कोच ने भी बताया था लेकिन वो राइट टाइम नहीं था उसको एड्रेस करने का. ड्यूरिंग द टूर तो नहीं कर सकते. लेकिन मुझे लगता है कि बस वो एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो इनकी इंजरी हुई लेकिन जब ये वापस आए हैं आई एम वेरी इम्प्रेस कि ये आके वाइट बॉल क्रिकेट में भी वो इम्पैक्ट डाल.
All right, all in all, big congratulations to the Yellow Storm for qualifying. They become the second team in this HBL PSL 9 to qualify for the playoffs. And we have 2 more spots, and we have 3 teams now vying for those 2 spots. It's going to be a very interesting rest of the HBL PSL 9. With that, we are going to take a break in the pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the pavilion. Firstly, I'd like to say well done to Azhar Ali. Well done, Azhar Ali. And good job. And you did a fantastic job. अभी मेरा हार्ट रेट थोड़ा सा वापस आया. चलो ठीक है. All right. And thank you, Wasim, for that lovely, very kind-worded message that you sent me while you were looking for me when I had disappeared. I only know one language. The language of love. Yes. Oh, and I don't blame you. You know, as president of Karachi Kings, that's the only language you can know. इनके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये वही समझते हैं. Exactly. The language of love. All right, folks, it's time for your favorite segment. It's hashtag Ask the Pavilion time. And let's start off, Janab. Saad Pasha, Toronto से सवाल पूछ रहे हैं. Ask the Pavilion. Hello, panel. Why is it that top foreign players like Narayan, Russell, Moeen Ali prefer the BPL over PSL, even though BPL has issues such as player payment? Does Narayan skip the PSL because he was called over his action? Wasim? PSL से एक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है. His action was called out in IPL. I think it's 2012, 2013. मैं इसके साथ गया था चेन्नई because I was with Knight Riders as the mentor and bowling coach. So I travelled with him to Chennai. वहाँ पे उनकी लैब है जो ICC के साथ होती है. वहाँ पूरे इसको वो लगा के सेंसर्स लगा के इसका टेस्ट लिया था. और ये क्वेश्चन था यहाँ क्यों नहीं आते? हाँ, मतलब क्यों नहीं वो BPL क्यों जा रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे? BPL they go for couple of game. वहाँ भी जैसे ILT 2 मैचों के लिए गए, इधर आ गए 2 मैचों के लिए, उधर चले गए. यहाँ पे पूरे महीने के लिए आना होता है. Maybe that's why there is got another 2 months coming up after PSL. That's IPL. That is the biggest league in the world. So they focus on that league a lot more. They want to do a rest before going to such a long league. All right. Saeed Danish, being Saeed Danish, आपका ex handle है. Salam guys from Karachi. My question is, why is it easy for current batters to get their desired batting number in the team from debut? Why not grind hard like earlier players like Hafiz, Babar, Misbah, all grades come from down the order to top in the batting order? Wasim. नहीं, उसके लिए अब प्रॉब्लम हुई है T20 से. अब T20 में हर कोई ओपन करना चाहता है. उसकी रीज़न क्या है? पहले 6 ओवर, नया गेंद, फ्लैट विकेटें. Am I right, guys? Absolutely. और वही अगर आप उन्हें को ओपन करें टेस्ट क्रिकेट या इवन वनडे में तो कहेंगे हमसे नहीं होगी. सो इजी ऑप्शन ढूंढते हैं हम यहाँ पे. और हमने कई जो रेगुलर ओपनर थे उनको हम मिडिल ऑर्डर में ले आए. और उसके बाद अब वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, कभी ओपन आ जाते हैं. सो कोई सिस्टम नहीं है हमारा. अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन का मेयार भी ज़्यादा रन्स हैं. जो रन्स कौन करेगा? जो ऑब्वियसली पहले नंबरों पे बारी लेगा. इसलिए जो मिडिल ऑर्डर का इम्पैक्ट के ऊपर सिलेक्शन होना वो बंद हो गया, जिसकी वजह से तमाम लोग ओपनर के तौर पर चले गए. पाकिस्तान के पूरे सर्कल में आप देख लें, जो भी आपको रन्स जिन्होंने ज़्यादा मोस्ट रन्स किए हुए हैं वो ओपनर या नंबर 3 के ऊपर खेल रहे हैं. 5-6 के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर रन्स थोड़े होते हैं लेकिन इम्पैक्ट होना चाहिए. बिल्कुल वो अनफॉर्चुनेटली कंसिडर नहीं किया जाता. आई हैव अ क्वेश्चन. नाइटली सीसी इनका नाम भी है और हैंडल भी है. उन्होंने कहा है who do you think is a better fit for Pakistan head coaching consideration, Darren Sammy or Shane Watson? Okay, Nightly CCG बिल्कुल. अब इन दोनों का जब हफीज़ आया था या मिसबा एज अ कोच आया था, मुझे याद है कि पूरे पाकिस्तान सोशल मीडिया पे हर जगह थरथली डाल दी थी. आप लोगों ने थरथली के डाली थी कि इनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है. एक 20 साल खेला है, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. एक 19 साल क्रिकेट खेला है. अब मुझे आप इन दोनों की कोचिंग हिस्ट्री ज़रा इस पे भी ज़रा थोड़ा सा मुद्दे पे चर्चा करें कि इनकी क्या हिस्ट्री है कोचिंग की. प्लीज़ पहले मुझे ये आंसर करें, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा. So interesting, Wasim, that you bring that up because I believe, and I'm as an observer of the game, not as an expert or anything, but just as an observer or the fan of the game, I've noticed one thing कि जब भी हम कोई पाकिस्तानी कोच लेते हैं या कोई पाकिस्तानी सपोर्ट में स्टाफ में लेते हैं तो फ़ौरन बात होनी शुरू हो जाती है इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या करके दिखाया है, इनको कितने पैसे मिल रहे हैं.
और जब भी कोई कोचिंग अलग है, कोचिंग कोर्सेज होने चाहिए, बिल्कुल, so that should be the criteria for everyone. बट दूसरी तरफ जब कोई फॉरेन कोचेस की बात आती है तो बस ये होता है कि यार इनमें से कौन बेहतर होगा हमारे लिए, दिस काइंड ऑफ this is the mindset I was- it's unfortunately the mindset that you're trying to address. और ऑनलाइन कोचिंग भी एक्सेप्ट की गई। जी जी गई, जी, पैसे मिकी दिए आर्थर उसको, को कहा गया ठीक-ठाक बाहर से पैसे बैठ के करे दिए कोचिंग। और उसने भी लिए। वो आया एशिया कप में आया, 4 दिन रहा पहले और चला गया। वहां जाके ससेक्स से डार्बी की ट्वीट कर रहा है। जी हाँ। और यहाँ पाकिस्तान में प्रकाश पड़ रही है और वो क्रिकेट डायरेक्टर है। आई नो वर्ल्ड कप में भी जो टीम डायरेक्टर ने टीम डायरेक्टर था वो। आई नो This is just total bizarre. Whoever made this decision, Sethi साहब made it. आपको भी 21 तोपों की सलामी है। भाईजान इतनी सलामियां देती है जाएंगे तो तोपें कम पड़ जाएंगी, आपको पता है आगे ऐसे डिसीजन पे तोपें कम पड़नी चाहिए। मुबश्शिर ढिल्लों साहब कहते हैं आज पवेलियन में, सलाम भाई एंड ऑल लेजेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हफीज भाई फॉर योर प्रेडिक्शन एंड प्लीज डोंट पिक पेशावर ज़ल्मी इन द प्लेऑफ्स। उन्होंने आपके लिए ये बोला है। Clever, very clever. क्या नाम बताया था? मुबश्शिर ढिल्लों साहब। मुबश्शिर, I like this. गलबात की गालबात गई। और फिर उन्होंने सवाल ये पूछा है, हफीज भाई, डू यू थिंक दैट वी शुड चेंज द कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप? बाबर एंड रिजी आर इन सुप्रीम फॉर्म, योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए जी, मैं तो सरासर खिलाफ हूँ कि जब भी किसी को लाया जाए उसको कम से कम 4 साल मिलने चाहिए। जैसे हमने पहले बाबर के ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट की, वो अच्छे बुरे रिजल्ट्स उसकी किसी न किसी बेसिस के ऊपर ही लेके आए ना। यही बाबर की कप्तानी अच्छी या बुरी उसके ऊपर डिस्कस लोग करें, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर डिसीजन लिया गया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, किसी को भी कप्तान बनाया तो उसको कम से कम 4 साल मिलने चाहिए ताकि वो रियल में कुछ जो है तब्दीली ला सके, कुछ रिजल्ट्स लेके आए। अच्छा, 4 महीने मिल जाए बड़ी गल है, तू 4 साल नहीं। मुझे तो 2 भी नहीं ना मिले। लेकिन मैं 2 भी नहीं दूसरों के लिए मिले। जो सही तरीका है मैं वो तो बात कर सकता हूँ। हमने एक चीज, आपने कहीं अपने आप को तो नहीं चूज किया था कोचिंग के लिए खुद? The result 2 महीने जा गया basically. I have a question before for you Mohammed. ask the question, I have one. Then you can ask this question. Sure, yes? sure, buddy. Naveed Khan है आपका ex handle है Nomi Khan 73. Please ask Wasim bhai, did he remember a banker is always a banker? Yeah, I'm the one who actually came out with this line, man. Yep, I know. So yeah. आगे चलो भाई, तो मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद सरोश आलम साहब ने पूछा है, वुड यू एग्री दैट दिस PSL exposed PCB's weakness as a cricket authority? In 9 years we have not been able to get players like Warner, Maxwell, Ben Stokes, etc. and those who do come leave in between. Thoughts? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है वसीम भाई कि ये पूरी दुनिया के जो ओवरसीज प्लेयर हैं ये A ग्रेड प्लेयर नहीं है, B, C. ये B भी नहीं है। आप जिस मर्जी प्लेयर को निकाल ले, ये C कैटेगरी के प्लेयर खेल रहे हैं। कैसे इंगेज करना है A कैटेगरी के प्लेयर को, वो हमें आपने बात की थी कि हमें अपनी फाइनेंशियल ब्रैकेट को बढ़ाना पड़ेगा। हम अपनी सैलरी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो किसी को शौक नहीं है यहाँ पे आके खेलने का, अच्छी क्रिकेट खेलने का, किसी को शौक नहीं है, पैसे चाहिए। या बिल्कुल, लेट मी गेट द नंबर्स टू सरोश आलम साहब जी। IL-T20 में हर टीम का परसेंट $2.5 मिलियन, जिसमें उन्होंने प्लेयर खरीदे हैं $2.5 मिलियन। और आई डोंट नो BPL में क्या है, CPL का में भी कम हो शायद इससे। PSL का पहले साल 1.2 मिलियन था और 9वें साल भी 1.2 मिलियन है। अब वहाँ वार्नर को मिले $500,000 और मोर to come there in Dubai with his family, staying on a golf course, come play cricket, take your family out, play golf off days. That's not the case. So all these top players, they look for that. Okay, अगर हम महीने के लिए जा रहे हैं, जी, 3-3.5 हफ्ते महीने के लिए जा रहे हैं, तो कितनी फाइनेंशियल गेन है, वहाँ आप बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। एक होटल में 1 महीना रहना is very tough. Although it's a 5-star hotel, it's a first world problem, but it is a problem. किसी टीम के पास जो अभी पिक्स हुई हैं ओवरसीज, आप मुझे बता दें कि वो इंटरनेशनल इस वक्त की टीम की T20 टीम के 4 बंदे भी वो हों जो इंटरनेशनल लीग अभी खेल रहे हैं, नहीं है। आपके पास वो प्लेयर हैं जो या तो ख़त्म हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं, या डिस्कार्डेड हैं। या वो आएंगे सिर्फ जब फाइनेंशियल जी, जब आपको फाइनेंशियल आप थ्रो करेंगे, हर बंदा आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी हो गया। वकार मिर्ज़ा साहब, आपका एक्स हैंडल वकार मिर्ज़ा, और ये सवाल पूछ रहे हैं, इन योर प्लेइंग डेज स्पेशली वसीम्स, did you guys pay that much attention to matchups, shorter boundary, longer boundary size? Having Imran Khan and Miyada type intelligent cricketing minds, would they ask you guys to better your skill to match any kind of condition?
Sorry, I didn't get the first bit of the वो question. कह रहे थे कि क्या आप अपने ज़माने में मैचअप्स को देखते थे और छोटी बाउंड्री साइड पे तो मैं इंच गेंद करना है या उधर लॉन्ग है, या जावेद मियांदाद, इमरान खान टाइप के उन लोग जो लीडर्स थे आपके, वो आपको कहते थे यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंडीशन? या वो टीम मीटिंग होती थी, वो सीनियर बोलते थे, हम सुनते थे, जो वो कहते थे हम करते थे। कभी ये नहीं किया कि बाउंड्री छोटी है, बाउंड्री बड़ी है या इनटू द विंड है। जब जूनियर थे तो इमरान भाई थे, तो हमने तो इनटू द विंड ही बॉलिंग करनी है। देयर वाज नो अदर ऑप्शन, देयर वाज नो कि यार मैंने द हार्ड वे। या इवन बकार का लंबा रन था, मेरा छोटा रन था, मैं कोशिश करता था, कप्तान भी था कि वो विद द विंड आए, मैं इनटू द विंड आऊँ। हालांकि मैं विद द विंड आ सकता था, but with Shoaib Akhtar, with Bakar, they were proper fast bowlers. Right. So they needed a bit of a push. Yeah. So that's why, okay, I said, being a captain, I should sacrifice. They can bowl with the wind. Yeah, I'll bowl into the wind. That happens normally. Yeah, that's fantastic. Khurram Khalili साहब, आपका एक चैनल Khurram Khalili, और आप कह रहे हैं, my question, we have seen so often that Babar and Rizwan always go for the review whenever they're given out, no matter how much plump or straightforward the dismissal seems. Why do they always waste a review in such scenarios? Azhar? नहीं देखिए, इसमें ना सिर्फ जो बैट्समैन जिसने रिव्यू लेना होता है, उसके साथ जो बैटर होता है पार्टनर, उसका भी रोल उतना ही होता है। आई थिंक बोथ प्लेयर्स हैव सेम ब्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, क्योंकि ये आपका एज ए प्लेयर रिव्यू नहीं, ये टीम का रिव्यू होता है। So if you wasted, Okay, I have a scenario now. You are Babar Azam. जी, जी. I am, say, a young batter like, say, South Shakil, batting. I'm at the bowler's end. You are batting. अपील हुई है, अब बाबर आपने मेरे से पूछा है कि आउट सी, फाइन, बेबी डाउन लेग ले लो। अब मैं थोड़ी ना कहूँगा आउट है उसको। ये अब ये भी डिपेंड बड़ा करता है ना, कल्चर पे ही बड़ा डिपेंड करता है। रिवर्स करता हूँ, जैसे मैं और यूनुस भाई होते थे, तो ऑब्वियसली एक यूनुस भाई सीनियर थे बहुत, तो ये ज़रूर होता था यार यूनुस भाई एक बहुत बड़ी विकेट हैं और इनका अगर 19-20 भी है तो लेना है। इसलिए नहीं कि यूनुस भाई हैं और वो पता नहीं क्या 19 बड़ी विकेट है। ये ज़रूर होता था कि यार यूनुस भाई हैं और थोड़ा सा मार्जिन हमें अगर है तो फिर ठीक है। ऑलराइट, I have a question before you. जी सर। I have a question from Mustafa Shah. You show is superb. Thank you, Mustafa. All of you guys, आप सबको कह रहे हैं वो। जी, thank you. I want to ask question to Salman Iqbal from ARY, our owner. Question ये है, thought your platform, Salman Iqbal, through your platform, that why not A Sports starting Urdu commentary channel, as Waqar Yunus also highlighted in his during उर्दू कमेंट्री। मुस्तफा, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बाय लॉ, पैमरा लॉ है, ये जो भी लॉ है, इट हैज़ टू बी अ स्पोर्ट्स चैनल टू शो लाइव क्रिकेट। राइट। हमारे पास ARY के पास चैनल हैं, 6-7 हैं, हम दिखा सकते हैं दूसरी पे उर्दू के साथ, बट उसके लिए लाइसेंस चाहिए। वो स्पोर्ट्स चैनल होगा। अब जैसे आप इंडिया में चले जाएं, स्टार स्पोर्ट्स के 7 चैनल हैं, सुपर स्पोर्ट्स साउथ अफ्रीका देख लें, वो 8 चैनल उनके पास। आप सोनी चले जाएं, उनके पास 6 से 7 स्पोर्ट्स चैनल हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। उर्दू कमेंट्री विल डू वंडर्स इन दिस कंट्री। हमारे पास क्योंकि एक लाइसेंस है ए स्पोर्ट्स का, उसमें हम एक ही बीम दिखा सकते हैं और उसमें बीच में वो आपके पास उर्दू कमेंट्री आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली उर्दू कमेंट्री आए, तो उसके लिए एक और आपको चैनल दरकार है और उस चैनल के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल काम है। साद पाशा, जिनका आपने सुनील नारायण का आंसर दिया था कि वो IPL में रिपोर्ट हुए थे, उन्होंने एक ये cricket.com ऑस्ट्रेलिया का एक आर्टिकल भेजा है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको एक्चुअली 2018 में PSL में रिपोर्ट किया गया था और फिर उसके बाद वो IPL के उनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ गया था। नहीं, उससे पहले रिपोर्ट हो चुका था ये। I was with him. Okay, all right. I was with him. Okay. In Chennai, I went from Calcutta to Chennai for his tests. Right. Yeah. Okay. पहले वो IPL में हुए थे और फिर यहाँ पे भी हो गए आए थे। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी कॉल हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा PSL का रुख नहीं किया। Okay. All right. वो शायद अपने आप को जो भी उनकी अब ये इंडियन जो ओनर्स हैं, ये IPL के ओनर्स, नाइट राइडर्स ले ले, मुंबई इंडियंस के ले ले, दिल्ली कैपिटल्स के ले ले, आई थिंक चेन्नई के भी ले ले। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक ग्रुप बना रहे हैं प्लेयर्स का। इनकी टीम IPL में है, इनकी टीम IL T20 में है, इनकी टीमें साउथ अफ्रीकन लीग में है, इनकी टीमें अमेरिकन लीग जो शुरू हुई है वो भी वहाँ भी टीमें हैं। तो ये प्लेयर को CPL में तो है ही है, तो ये प्लेयर को 5 टूर्नामेंट्स के लिए साइन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वन ऑफ, से कि विल गिव यू से X amount of money for 5 tournaments, you just with us. So that's why what's happening. Yeah, that's just with that we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side.
All right, folks, welcome back from the break. You're watching The Pavilion, and this is A Sports, and lights are flickering. Things are happening on this set. And before the break, we were doing hashtag Ask The Pavilion. और अब मेरा ख्याल वक्त हुआ है कि हम आपको लीडर बोर्ड दिखा दें हमारी एक्सपर्ट प्रिडिक्शंस का. हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, अजहर अली, मोहम्मद हफीज़, मिसबाह उल हक, वसीम अकरम. हेयर इज द लीडर बोर्ड. ये रही सूरत हाल आज की लीडर बोर्ड की. मिसबाह उल हक लीड में मजीद अपनी लीड को बढ़ाते हुए 17 पॉइंट्स के साथ आगे. अजहर अली 13 पे फंस गए हैं. वसीम अकरम ने लीड अपनी गेन की है 12. आज इन्होंने आखिरी सेकंड में पेशावर ज़ल्मी को चूज किया, जिसकी वजह से 1 पॉइंट मिला. वो 12 पे पहुंचे हैं, वो अजहर अली के करीब घुस रहे हैं. और मोहम्मद हफीज हस्बे हाल वैसे के वैसे अपने मुताबिक 9 नंबर पे, खुद पॉइंट्स पे नहीं, 9 खुद तो नंबर. डूबे हैं सनम, टीमों को भी ले डूबे. ये जनाब बिल्कुल, ये मैंने नहीं मुझे कहा. एक क्वेश्चन आया, मेरे बड़े पुराने जानने वाले बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, सरगोदा में होते हैं, जुल्करनैन साहब नाम है उनका, वो शो देख भी रहे हैं. हफीज़ के लिए क्वेश्चन है, क्विक वन बिफोर. हाँ, जरूर जरूर. कि हफीज़ साहब, हफीज़ भाई से पूछ के बताएं कि वो बाबर से नाराज़ क्यों रहते हैं. हाँ जी, दसो. मैं तो कभी भी नाराज नहीं हुआ. जुल्करनैन साहब सुन लिया तुसी? सुन लिया. सुन लिया सर जी. वो कह रहे हैं मैं उनको नाराजगी लग रही है, तो वजह तो बताएं कि किस वजह से उनको लगा. या नहीं, हफीज़ तो वी ऑल प्रेज फॉर बाबर आजम. ही इज अ स्टार प्लेयर. या एब्सोल्युटली, नो क्वेश्चन अबाउट दैट. अच्छा, फिर वापस चलते हैं. हफीज जो है वो 9 नंबर पे हैं, सॉरी 9 पॉइंट्स के साथ, समझे 9 ही नंबर पे हैं. प्लीज. और ये मिसबा ने बड़ा अच्छा शेयर करा था. मिसबा जरा दोबारा बोलिएगा, बड़ा अच्छा शेयर है. कट कीजिए जरा मिसबा के ऊपर. हाँ, क्या है? खुद तो डूबे हैं सनम, टीमों को भी ले डूबे. कल और जी प्लीज. आपको मैंने बताया है कि आज मुझे जिम में मिले हैं आतिफ राना, और जुम्मा की नमाज पे जो है ना लाहौर के सारे प्लेयर हफीज को ढूंढ रहे थे. अब आप कि कल लाहौर ना पिक करना. नहीं, इसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, कराची ना पिक करेगा. नहीं कल और जी. थैंक यू वेरी मच. लाहौर. लवली. actually, you know, I smell a business opportunity in this whole thing for the rest of the PSL. I think we need to get in touch with the rest of the owners. हाँ, उनको कहे एनालिस्ट को लाख $1.5 लाख दे रहे हैं इतने सारे प्लेयरों को. हमारे पास भी एक प्लेयर है जो आपकी किस्मत का पासा पलट सकता है. बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है. राइट दोस्तों, कल एक और मुकाबला है, कल एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. 26वां मैच है. इट इज़ वसीम अकरम्स कराची किंग्स वर्सेस द लाहौर कलंदर्स, और ये कराची की ग्राउंड में खेला जाएगा. कल शाम 7 बजे 5 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. दिस इज गोइंग टू बी रियली अ वेरी गुड गेम. नाउ कराची किंग्स वांट्स टू मेक श्योर कि इनके जो आखिरी 2 मैचेस रह गए, ये वाला और उसके बाद वाला, दोनों मैचेस ये अपने जीतें, एंड होपिंग दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स continues to falter if they can somehow manage that miracle. उसके लिए हमें हफीज से बहुत सारे ताउन की जरूरत है. अभी से प्यार से बातें हफीज से. इसकी एनीथिंग ब्रदर फॉर यू, एनीथिंग. देसी मुर्गी, देसी मुर्गी मांगे आप, जो मर्जी, वलैती बकरा, जो मर्जी, whatever. It's we will take care of it all. All right, folks. With that, it is the end of the day for us here in the Pavilion. Another great day comes to an end. I'd like to thank all my panelists. Azhar Ali, thank you very much. You were a real sport today. 2-4 बातें आपके मुंह से निकल गई हैं, हमने वो कैप्चर कर ली. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे चली जाएंगी. अब उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी उसमें कोई नीयत खराब नहीं थी. आप जेन्युइनली एक बात आपके मुंह से फ्लप हो गई. याद रखिए, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता. बिल्कुल. हफीज ने लाहौर का आया. हफीज को बता दें कि वो वंदर दूसरे अपना आखिरी मैच खेल के चले गए हैं, कल नहीं. लाहौर ही है तो फिर भी लाहौर गया. All right, Hafiz, thank you very much. Appreciate it greatly. Thank you, Misbah. Like always, you've been very naughty and on spot with everything that ला you दे say. मेरा नाम. तेरा नाम लाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है. And with that, जनाब सदर कराची किंग्स, कल के लिए आपको, अभी से आपके लिए हम बिग डे टुमारो. और आपको बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਮਰਵਾਤ ਨਹੀਂ. कल आएगी कल. बिल्ली दी कढ़ाई तेरी बना के खवाती मिसबा नू. All right, we are getting naughty now. Time for us to sign off. And all I can say is, 8-bit Gulkan, good night.